ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा dear devotees, welcome for our next session on Bhakti Shastri Nectar of Instruction. So today we are going to start our or continue rather our text number 5. So let us quickly try to see what Lord Shreps has to say, or what Rup Goswami has to say. So quickly a recap. So here we see that how Arup Goswami in the first verse, he publicized about becoming a guru. Then somebody asks how to become. Then in second verse, he tells avoid unfavorable circumstances which destroys your bhakti. And third verse itself follow favorable things which makes you successful in bhakti. And then the question is asked that if that is so, how I should follow favorable and avoid unfavorable? Then he says for that you need association of devotees in the fourth verse. Now, how to associate with devotees? So that is where Rupa Goswami says that there are three levels of devotees and you should learn to associate with all of them differently. So there is a equality with difference. And therefore the text fifth comes here. Let us read. कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षस्ति चेत प्रणतिबेश भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विघ्न अनन्य अन्या निन्दाति शून्य हृदमेप्सित संगलब्ध्या. So here the three levels of devotees are described and how to deal with them. First, one should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. Mentally honor. So that means anybody who chants, even on the street when we go for Harinam Sankirtan, if they chant, we should mentally honor them. That is called Kanishta Adhikari, we are seeing. Second, he says, one should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, Diksha, and is engaged in worshipping the deity. So that means what is the Madhyam Adhikari? He has accepted a spiritual master, or at least started to following the spiritual master, and therefore he has taken initiation. Initiation doesn't mean only the formal initiation, but initiation means that he has accepted the spiritual master in his heart and ready to follow the teachings of that spiritual master. And he's also engaged in worshipping deities because the spiritual master has given him this instruction. So although we see that Kanishta Adhikari is too much attached to deities, and then here Madhyam Adhikari is also worshipping deities, but here Madhyam Adhikari's worship of deity is mostly because of instruction of spiritual master. And then the third one is what? One should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. This is very important. This is a devotee with to whom we should serve. Serve means what? So it is explained, Krishna says, na, tad viddhi pranipate na pariprashnena sevaya updekshanti te jnananas tattva darshina. This tad viddhi pranipatena pariprashnena sevaya. So all these three things happens with the devotee who is supposed to be a spiritual master. So Rup Goswami in one sense is telling that anybody who chants the holy name, offer him obeisances in the mind. Anybody who is following a bona fide guru, then what we should do? We should physically offer him obeisances. And anybody who is having firm faith in the lordships and doesn't criticize others, such a person we should accept as a spiritual master. From him we should be
taking initiation. That is what Rup Goswami is trying to tell here. So we saw last time about Kanishta Adhikari, and we also saw about Madhyam Adhikari. Correct? Anybody would like to recall any 1 2 points about Kanishta and Madhyama? Any devotee? Kanishta Adhikari, miss, he has faith, like miss, on scriptures he has faith. Miss, he considers Lord's indeed, like Lord is in temple only, and he has lot of awe and reverence for Lord. But with devotees, his dealing is not like nice. Perfect. Amazing. Not nice, but doesn't mean not nice. Means he doesn't like to deal with devotees only. है ना, उसको लगता ही नहीं. नॉट नाइस तो मतलब बहुत सारे लोगों के नहीं हो सकती है. बट कनिष्ठ अधिकारी को नीड ही नहीं है कि मेरे को डिवोटिस का एसोसिएशन लेना है. वो अपना कैमरा ऑफ कर, ओ सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कैमरा ऑफ नहीं मतलब ऑन करके रखता है. बट उसको लगता नहीं है कि मेरे को डिवोटिस का एसोसिएशन लेने की जरूरत है ना. ऐसा कनिष्ठ अधिकारी, क्योंकि उसको लगता है भगवान और मैं, हम ही लोग बस काफी है ना. हम दोनों भगवत धाम में मिलेंगे ऐसा. थैंक यू. एनीबडी एल्स मध्य में या कनिष्ठ का कोई लक्षण? कैमरा ऑफ वाला मत बताना, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका नाम आ जाएगा. ठीक है. कोई और लक्षण? यस, यही लक्षण है. कन्या मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी के फेथ थोड़े कम होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन पूछने पे आंसर नहीं दे सकते, दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते. लेकिन उत्तम अधिकारी जो है वो पूरा कन्विंस कर लेता है. करेक्ट. आप लोग कितने प्रैक्टिकल एकदम. मेरे ख्याल से आपके संग में मैं बहुत सीख रहा हूँ. लेकिन कुछ कुछ लिखा वाला कोई सिम्टम आप बता सकते हैं? मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लोग बता सकते हैं. हाँ हाँ ठीक है, चलेगा. आप लोगों की प्रसन्नता के लिए और प्रभुपाद जी के आशीर्वाद के लिए हम ही बता देते हैं, आपको रिवाइज कर देते हैं. तो दिस वाज कनिष्ठ अधिकारी सिनॉप्सिस. ही डील्स विद deities and not deal with devotees. His level is in holy name only, है ना. And is on the प्राकृत level. प्राकृत मतलब प्रकृति के लेवल पर रहता है. Definition in Bhagavatam comes आचार्यम एव हरे पूजाम. Worships the deities, has some faith, doesn't well behave with devotees, and doesn't treat them properly. So this is about Kanishta Adhikari. How he can advance, we saw. If he continuously worships deity, associate with senior devotees, read the scriptures, recognize who is devotee, who is not devotee, develop friendship with the devotees. That is how he can advance. Then Madhyamadhikari, this is the shloka for Madhyamadhikari. Ishvare tad adhineshu balisheshu dashashtucha. That means Madhyamadhikari know how to deal with whom properly. With lordships, he has prema. With the devotees, he develops friendship. Very innocent, he shows kripa. And to envious people, he neglects them. Although he wants to preach to them, but he understands that I am not at that level to preach to them. So this is what we saw last time. And also we saw who is envious, why to avoid envious people. Otherwise, that tendency may come to us also. So today we are going to start with Uttam Adhikari. So why we are discussing all these things is because until unless we do not understand who is at what level, and we may try to treat everybody equally. That is a Kanishta level or not so advanced level. But as a devotee in devotional circles, it's very, very important that we understand who is who. Srila Prabhupada in his purport, after describing about Kanishta, Madhyama, and Uttama, he tells about initiation, which we are supposed to take from a Uttama Adhikari. So nowadays we find there are so many people on YouTube and so many places. And sometimes even devotees hear and they get affected. Wow, such a good news, good way he is speaking. But we should be careful whether he is a Uttam Adhikari or not. One side he is glorifying so nicely everything pastime of Krishna. On the other hand, he is criticizing devotees. And he is finding fault. Then according to Rup Goswami, we are not supposed to serve him. We are just supposed to mentally or physically offer him obeisances. That's why it's very important. In fact, I tell you one of the incident from my life which gave me faith in my spiritual master is known as Radhanath Maharaj a lot. And like this, it is a case with everybody. Whether you name any other spiritual master,
who is a bona fide representative. So I remember that once how His Holiness Radhanath Maharaj visited ISKCON Pune, and His Grace Radheshyam Prabhu was taking him around the tour. And while taking him around the tour, Radheshyam Prabhu was just mentioning about problems with the devotees. You know, this devotee is behaving like this, he is not switching on his camera, he is not answering. नहीं, उस समय zoom नहीं था, but something like that he was telling. And His Holiness Radhanath Maharaj's face, it is supposed to be blissful, है ना? Like it is some of yours face, it is shrinking. It started shrinking. Even though he is taking all the tour of temple, but he was not looking happy. Radheshyam Prabhu was saying, why he is not looking happy? Then Gaurang Prabhu was next to him. Gaurang Prabhu said, Arey Radheshyam Prabhu, stop telling faults of devotees. Start glorifying devotees. Maharaj doesn't like to hear faults of others. And then Radheshyam Prabhu just switched the gear. He started glorifying devotees. And immediately Radhanath Maharaj's face started becoming brightened up. He started laughing and, very happy. So this thing Radheshyam Prabhu was mentioning, that such kind of devotee we should choose as a spiritual master. I'm not here promoting Radhanath Maharaj, but I'm telling such kind of devotees who should not be interested in hearing about the faults and speaking about the faults of others. Similarly, there are many other incidences, which we can see in the life of very, very great souls, how they're least bothered about criticizing others. In fact, I remember one more incident that in GBC meeting, the GBC meeting was going on, and there one issue came. One of the disciple of one of the guru, he left ISKCON, and then devotees wanted to talk about that disciple, why he left ISKCON, what was the fault. But his guru was not present. His guru was also GBC member, but he was not present. So immediately, one of the mature devotees said, who is again very great soul, he said that actually, if the guru is not present, we have half knowledge, we should not speak about him. Once we get full knowledge, we will speak. So this is Uttam Adhikari. They are least bothered about criticism and this and that. Of course, sometime for managing purpose and other things, we require to scrutinizingly understand the situation. I am not denying that fact. But Uttam Adhikari is not interested in all those things. He sees everything as a plan of Krishna. He has so much faith upon Krishna, he understands even if something wrong is happening, it is good. I heard one pastime of Srila Prabhupada, and one of the person came to him and he said, Swamiji, in your Bhagavad Gita, Krishna is telling about Gyan Yoga, you are writing about Bhakti Yoga. Prabhupada said, oh, anything else? He said, yes, like this, I have found so many faults in your Bhagavad Gita. Krishna is telling about here Karma Yoga, you are writing Bhakti Yoga. Prabhupada said, anything else? He said, Krishna is telling about his Vibhuti, you are telling about Bhakti. Prabhupada said, anything else? Like that, that person kept on finding fault in Prabhupada's literature for 1 hour. And all Prabhupada disciples, they were like becoming angry. अभी इसको बताते हैं, है ना? क्या बता रहे भक्ति योगा, कर्म योगा सब. But Prabhupada was quiet. And after 1 hour, he became, उसने सोचा अरे इतना मैंने criticize कर दिया, स्वामी जी कुछ तो होना चाहिए था इनको, कुछ भी नहीं हो रहा है. And he went away. Then devotees asked, Prabhupada, why didn't you blasted him in the very first go that how the Krishna wants to say bhakti yoga only? Prabhupada said that because I didn't did that, at least for 1 hour he was chanting name of Krishna. That will go into his credit. है ना? So this is how Uttam Adhikari sees. है ना? He doesn't sees anything personal, anything. He sees everything as plan of Krishna. And that is why from such a person we should be taking initiation. And even Shiksha also. Of course, sometimes Shiksha may, our Shiksha gurus may tell us that we should not go to this person, we should not go to that person. In fact, Rup Goswami is telling, but this is constructive criticism which help us to grow. So let us try to see Uttam Adhikari's attributes and some description. Please, one of you can read. Attribution description. Heart, completely clean, free from criticism or blasphemy. Consciousness, fully realized, unalloyed Krishna consciousness. Nature, humble, respectful, compassionate. Status, highest level of Vaishnava devotee. Correct.
So actually, one very important thing here is one thing is very deep, huh? See, there are stages of bhakti, है ना? आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, नर्ता निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम. So this Kanishthadikari should be minimum I am telling. Sorry, this Uttam Adhikari, which you are talking about, he should be minimum at the level of Asakti. This is what I heard from His Holiness Bhakti Vigyan Goswami Maharaj. Because the description of Uttam Adhikari, which is written here, it matches with the stage of Ruchi. What is that stage? So heart is completely clean of anarthas. Of course, criticism and blasphemy and all the anarthas. So when most of our heart gets clean of anarthas, that is at the level of nishtha. Okay. Second, conscious, fully realized, unalloyed Krishna consciousness. So in the heart of nishtha, one will be, cleansed of all the impurities, but he has to have some ruchi for Krishna, unalloyed Krishna consciousness. That is attained at the level of ruchi. Then his nature is humble, respectful, compassionate. So that is also again a level of we can say anartha nivritti he has crossed, and therefore he is humble. And he is the highest level of Vaishnava devotee. Highest level doesn't mean prema. So this very important thing we have to understand here is that when we are talking about Uttam Adhikari, whom we are supposed to take initiation, it doesn't mean that he has to be at the level of prema or bhava bhakti. That is not the case. He should be minimum at the level of ruchi or asakti. And then he's progressing at least nishtha he has crossed. That is a minimum requirement. Because till nishtha, the criteria for judgment for Uttam Adhikari, Madhyam Adhikari, Kanishta Adhikari are his knowledge and faith. These two are the important criteria by which one can judge. He is a Kanishta, he is a Madhyama, he is Uttama, because he has this much knowledge, this much faith. But once he crosses the stage of nishtha, then the criteria for judgment changes. What become the criteria of judgment? Then the criteria of judgment become the attachment and love for Krishna. Therefore, you will find at Ruchi we don't say so many anarthas are gone. All these things we don't discuss, correct? He has this much knowledge of Krishna. Knowledge is not the important factor there. There, what is important factor? Attachment and love. So therefore, dear devotees, you will find sometime Uttam Adhikari is described as who is having attachment and love. And sometimes he is described as one who is having firm faith and conviction in Krishna consciousness. So both are different descriptions. You have to understand. Otherwise, if we consider to be same, then we'll get confused. What is happening? Because both are different in the sense that faith and conviction, faith and knowledge, wala part, it describes the devotee at least who is at level of nishtha and ruchi. Now in ruchi level also, those who are having taste in Krishna consciousness, for there also there is different description, Kanishta, Madhyama, Uttama. And that is described based on the level of attachment and love. Okay. So, but for our spiritual master case, Diksha case, we have to accept it from person who is at the knowledge and conviction level, he is Uttama Adhikari. That is what we should be following him. Okay. And that is what is written, highest level of Vaishnava devotees. That's what Rupa Goswami is telling. Because Uttama Adhikari can be Kanishta in his attachment and love level for Krishna. He can be Madhyama in his attachment and love. He can be Uttama in his attachment and love for Krishna. But even if he is Uttama and Kanishta in his attachment level of love and Krishna, we have no problem. We should take initiation from him. Any doubts in this? हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. प्रभु जी आपने अभी जो बोला कि ऐसे करते ना तो रेज हैंड हो जाता है। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं कर रहा था कि आपने अभी बोला, ये दोनों कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन सा लगा। आपने बताया कि निष्ठा के बाद हमको देखना है फेथ एंड नॉलेज, निष्ठा के पहले हमको, मतलब निष्ठा के बाद भाव एंड प्रेम, उससे पहले हम क्या कहते हैं, नॉलेज एंड फेथ देखते हैं। लेकिन अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो उत्तम अधिकारी है वो तो एटलीस्ट निष्ठा का लेवल तो क्रॉस कर ही चुका है। ग्रेट। एक्चुअली मैं पीपीटी नहीं बना पाया, आई एम फुलिश पर्सन, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। मैं वापस बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि
हम अपने नॉर्मल स्टडीज में देखते हैं, करेक्ट? तो नॉर्मल स्टडीज में क्या होता है? नॉर्मल स्टडीज में होता है कि कोई अभी 10th ग्रेड में है, तो 10th ग्रेड में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, करेक्ट? और 12th ग्रेड में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, कॉलेज में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, करेक्ट ना? लेकिन क्या फर्स्ट 10th ग्रेड का फर्स्ट वाला 12th ग्रेड के फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर कर सकते हो उसको? नहीं कर सकते, दोनों का क्या अलग है? ग्रेड अलग है, ठीक है? तो वैसे ही दो ग्रेड होते हैं। एक ग्रेड होता है कनिष्ठ मध्यम उत्तम को जज करने का, वो होता है फेथ एंड नॉलेज। उसको कितना फेथ है, उसको कितना नॉलेज, मतलब कन्विक्शन है, ठीक है? तो उसमें कनिष्ठ कौन होता है? जिसका फेथ कम होता है, कन्विक्शन बहुत ही कम होता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है। मध्यम में कौन होता है? उसका फेथ थोड़ा ज्यादा होता है, कन्विक्शन होता है, वो खुद अफेक्ट नहीं होता है लेकिन दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकता। उत्तम में कौन होता है? जिसका फेथ भी बहुत होता है और नॉलेज भी पूरी कन्विंस होती है। ये एक लेवल हो गया, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, ठीक है? अभी ये जो लेवल है, इस लेवल के हिसाब से जो उत्तम अधिकारी है वो मिनिमम एट द लेवल ऑफ उसने निष्ठा क्रॉस करी होनी चाहिए, तभी उसका फेथ क्या होगा? निष्ठा, निष्ठा मतलब स्टेबल हो जाएगा फेथ, जो शेक नहीं होगा, ठीक है? और उसको कृष्ण में थोड़ी सा तो टेस्ट होना चाहिए, तभी वो दूसरों को कृष्ण के लिए टेस्ट दे पाएगा और कृष्णा की नॉलेज दे पाएगा। तो इसलिए वो जो है वो उत्तम कैटेगरी, ये एक हो गई, समझ में आ गया कि ग्रेड की कैटेगरी। अब जब कोई डिवोटी को कृष्ण में टेस्ट आ गया, तो अभी टेस्ट के भी अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम सुनते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब प्योर डिवोटीज, लेकिन प्योर डिवोटीज के अलग अलग लेवल है ना? माधुर्य, वात्सल्य, साख्य एंड दास्य एंड शांत, करेक्ट? ये लेवल है ना प्योर डिवोटीज के भी। अब उसमें भी आप देखेंगे माधुर्य के भी अलग अलग लेवल है, परकिया, स्वकिया, करेक्ट? उसमें परकिया में भी अलग अलग लेवल है ना? 7 लेवल्स है उसमें। हमारे चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज को समझ आते हैं, उसमें अलग अलग मधुनक के महाभाव जो श्रीमती राधा रानी का लेवल सबसे हाईएस्ट है। तो वैसे ही ये वाला जो ग्रेड था फेथ एंड कनेक्शन वाला, इसमें जो हाईएस्ट लेवल है उत्तम, उस उत्तम ग्रेड के भी 3 ग्रेड है, ठीक है? एक्चुअली तीनों के एक 3 ग्रेड है, कनिष्ठ में भी 3 ग्रेड हो सकते हैं। कोई कनिष्ठ भी कनिष्ठ हो सकता है, कनिष्ठ भी मध्यम हो सकता है, कनिष्ठ भी उत्तम हो सकता है, मध्यम भी कनिष्ठ हो सकता है, मध्यम भी मध्यम हो सकता है, मध्यम भी उत्तम हो सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि ग्रेड है ना प्रभु सबके। अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको इतना कन्विक्शन आ गया, ठीक है, 100% आ गया तो मतलब आप मध्यम हो गए, अगर 100 से एक भी कम है तो आप कनिष्ठ हो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। मध्यम में भी अलग अलग लेवल हो सकते हैं। तो वैसे मैं बता रहा हूँ कि उत्तम में भी 3 लेवल है, ऐसे सबके 3 लेवल है। लेकिन उत्तम के 3 लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो डिवोटीज को जब डिस्क्राइब किया जाता है तो उनको डिस्क्राइब किया जाता है बेस्ड ऑन अटैचमेंट एंड लव। अटैचमेंट और लव कितना आ गया, क्योंकि उत्तम जो बन गया है वो निष्ठा को तो क्रॉस कर गया है, अब उसको क्या आना है? रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो अब उसको प्रेम वाला सीढ़ी वाला चढ़ना है, करेक्ट? तो वो प्रेम में क्या देखेंगे? प्रेम कितना आ गया उसको, ये देखेंगे ना। तभी ये तो ना बोलते रहेंगे आपने अनर्था छोड़ दिया, क्या अनर्था छोड़ दिया? अनर्था अनर्था के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर हम प्रेम के बारे में बात करेंगे, करेक्ट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके कोई फर्स्ट ईयर्स को प्रीचिंग करते हैं, तो फर्स्ट ईयर को हम क्या प्रीचिंग करते हैं? 16 माला, 16 माला, 16, उनके लिए 16 माला इंपॉर्टेंट है। अभी आप सब 16 माला कर रहे हैं, अभी कोई बोलता है कि आपको 16 माला के लिए? अब किसके लिए बोलते हैं? माला की क्वालिटी जगो, सॉरी, सो मत, है ना, अटेंटिव जपा करो, है ना, ऐसे करके। अब जब आप और हाईएस्ट लेवल पे, हायर लेवल पे चले जाएंगे, तो कोई अटेंटिव जपा के लिए बोलेगा कि आपको? नहीं, तो बोलेगा हार्टफुल जपा, क्राइंग लाइक अ चाइल्ड फॉर अ मदर, ऐसा ऐसा जपा करो, करेक्ट? तो ऐसा अलग अलग लेवल होता रहता है, ठीक है? तो इसको ऐसे सिंपली जैसे हम लोग कलर्स में नाम देते हैं वैसे इसको नहीं कह सकते, जैसे आपने बताया ग्रेड मतलब कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ मध्यम, कनिष्ठ उत्तम। देखिए ना। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस। हरे कृष्ण भजी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया प्रभु जी कि स्पिरिचुअल मास्टर का या फिर जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनका कैसे मतलब चेक करना चाहिए, ऐसा तो प्रभु जी हमारे केस में इस्कॉन में प्रभु जी जो उस लेवल पे जाते हैं, जैसे इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं, तो उस केस में तो जीबीसी वो सारा जांच पड़ताल करके ही वहां तक बैठालती है ना प्रभु जी, या फिर हमें भी खुद चेक करना चाहिए ऐसा करके? वो तो कैसा कुछ है नहीं हमारे अंदर योग्यता, या फिर क्या बताना चाह रहे थे फिर आप?
ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रभु जी हाथ ऊपर रखिए। ये दूसरी चीज बताना चाह रहा था। पहली चीज बताना ये चाह रहा था कि रूप गोस्वामी को तो नहीं पता था कि इस्कॉन में जीबीसी चेक करने वाला है, करेक्ट? तो रूप गोस्वामी ने हर किसी को इक्विप्ड बनाया है कि आपको भी भक्ति का प्रोसेस पता होना चाहिए। कल को अगर कुछ भी क्या कहते हैं, कोई और व्यक्ति ऐसा कोई आ जाता है या कोई करप्ट गुरु आ जाता है, तो आप दूसरों को बता सके कि गुरु चूज करने के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए। दिस इज अ साइंस ऑफ भक्ति। साइंस ऑफ भक्ति एक ही जैसी रहती है, हमको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी। बस इतना। हमारे केस में प्रभु जी मतलब सब कुछ सही है ना प्रभु जी, पहले से चेक होके आता है प्रभु जी। वही मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हमको ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बन रहा है, हमको फेथफुल फॉलोअर्स बनना है। तो फेथफुल फॉलोअर्स में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये रूप गोस्वामी का गोल है। अब हमारे केस में फैसिलिटेशन है कि इतने सारे डिवोटीज हैं, ये है वो है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है किसी के केस में ना हो, तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है। आपके केस में यस हम बोल सकते हैं, बट ये आप नीचे वालों को नहीं बोल सकते कि देखो हमारे केस में एकदम बढ़िया है। नहीं नहीं, उसको चेक करने दो ना क्या प्रॉब्लम है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस प्रो, अमन यादव प्रो, आपने भी हाथ उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये आपने 3 लेवल बताया उसमें उत्तम अधिकारी के, उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम, उत्तम उत्तम। तो इसमें प्रभु जी कुछ सिम्टम्स आप बता पाएंगे, लाइक क्या कैसे रहता है? वो सिम्टम आउट ऑफ स्कोप ऑफ भक्ति शास्त्री है, ठीक है? ओके। उसके, हाँ, उसके लिए आपको भागवतम में जब भक्ति वैभव करेंगे ना, उसमें डिस्क्रिप्शन आएगा। जो श्लोक है, जो प्रभुपाद जी कोट कर रही है, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। और फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें भी ये डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है? और डिटेल में, मतलब एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको चाहिए वो उसमें आएगा। हियर वी आर जस्ट टचिंग द थिंग्स। क्या बात है, अमेजिंग। चलो लेट्स गो हेड। सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उत्तम अधिकारी, प्लीज रीड। उत्तम अधिकारी, द Very टॉप मोस्ट serious about डिवोटी। devotional service, strictly follows all regulative principles, chants prescribed round attentively, constantly thinks how to expand Krishna consciousness movement, lives with mission, not comfort. Correct. So here some more characteristics Srila Prabhupada writes in purport, that he is very serious about devotional service. So from here you can see, हम लोग जनरली सुनते हैं ना, one should be sincere, serious and without ulterior motives. तो सिंसियर और सीरियस दो चीजें होती हैं। तो उसमें कैसे पता चलता है? तो सीरियस वाला जो डिवोटी होता है ना, वो उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी का हमने क्या बताया, उसका फेथ और कन्विक्शन और नॉलेज अच्छी होती है, और वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता है। तो जो सीरियस डिवोटी है, यहाँ से ये राधे श्याम को बताते हैं, जो सीरियस डिवोटी है ना, उसका क्या क्वालिटी है भक्ति में? जो सीरियस है वो क्रिटिसाइज नहीं करता है दूसरे डिवोटीज को, वो निंदा विंदा में नहीं पड़ता है। यहाँ से हमको पता चल सकता है, बिकॉज उत्तम अधिकारी के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ही इज वेरी सीरियस। और सिंसियर कौन होता है? सिंसियर होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। मतलब उसको बोला 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है, ही सिंसियर, क्योंकि वो नियम पालन कर रहा है। लेकिन सीरियस कौन है? जो नियम पालन करने के साथ साथ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, ब्लास्फेमी नहीं कर रहा है डिवोटिस का। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। बल्कि वो भी नियम तो पालन कर ही रहा है, ऐसा नहीं कि वो नियम पालन नहीं कर रहा है। सीरियस वाला भी नियम कर रहा है, सिंसियर वाला भी कर रहा है। लेकिन सिंसियर वाला थोड़ा कभी कभार इधर उधर डिवोटिस को क्या कर देता है, क्रिटिसाइज कर देता है, फॉल्ट फाइंडिंग कर देता है। सीरियस वाला उसको पता है फॉल्ट फाइंडिंग करने से कुछ फायदा नहीं है, मेरे को अपनी भक्ति में फोकस करना। He follows all regulative principles as right written by Prabhupada. He chants prescribed rounds attentively. क्योंकि अब उसका माइंड क्या हो गया, स्टेबल हो गया, वो निष्ठा की लेवल तो क्रॉस कर लिया, तो इसलिए ही कैन चैंट द राउंड अटेंटिवली। एंड नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटली थिंक्स हाउ टू एक्सपेंड कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, बिकॉज दिस उत्तम अधिकारी ही अंडरस्टैंड दैट हाउ कृष्णा विल बी बेस्ट प्लीज्ड। तो उसके लिए अलग डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्पेसिफिकली गौड़ीय वैष्णवास के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी प्रीचिंग के बारे में लिख रहे हैं।
और आज गीता जयंती भी है ना। और आज के दिन तो हमको भगवत गीता वितरण करनी ही चाहिए। सो आई टेल यू ब्रो, एक रियल इंसिडेंट है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। एक बहुत बड़े बाबा है हमारे भारत में, जो दरबार लगता है और वो पर्ची निकालते हैं और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। आपको पता होगा एमपी में बहुत फेमस है। तो उनकी कथा चल रही थी एक जगह, यहाँ से झांसी से पास में। सो येस्टरडे वी हैड गॉन देयर, कल उनका आखिरी दिन था कथा का। एंड देयर वर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल कमिंग देयर, हमको तो बाद में पता चला। सो वी वेंट लास्ट डे और हम लोग वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए। तो हम देख रहे थे कि वो इतने बड़े बाबा हैं, इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों को सिर्फ चमत्कार के लिए बुला रहे हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस, ये प्रीचिंग वाला मूड नहीं है उनका। ये प्रीचिंग वाला मूड एक्सक्लूसिव हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग गौड़ीय वैष्णवज हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। चैतन्य महाप्रभु मीन्स मूड ऑफ राधा रानी। राधा रानी का मूड है टू शो कंपैशन। इसलिए जो उत्तम अधिकारी होता है, बिकॉज ही इज कंप्लीटली फॉलोइंग एंड हैविंग फेथ अपॉन इंस्ट्रक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, इसलिए वो बैठ ही नहीं सकता। और स्पेशली गीता जयंती वाले दिन तो बैठेगा ही नहीं, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, क्योंकि उसको मन करेगा कि अरे राधा रानी प्लीज होंगी, चैतन्य महाप्रभु प्लीज होंगे। तो ये हम हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से भले ही हम उत्तम नहीं हो, लेकिन हमको भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है उत्तम जैसे कार्य करने की, जो उत्तम अधिकारी करता है। कॉन्स्टेंटली थिंक्स अबाउट हाउ टू एक्सपैंड कृष्ण कॉन्शियस एंड लिव्स विद मिशन नॉट विद कंफर्ट। वो अपने बारे में नहीं सोचता है। सो नाउ देयर इज वन फ्लो चार्ट कि वो कैसे इस लेवल पे पहुंचता है, इतने सारे लोगों को प्रीचिंग करने के लेवल पे कैसे पहुंचता है उत्तम अधिकारी। दिस इज हाउ इट रीचेस। फर्स्ट, ही हैज डीप रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा। तो यानी कि उसका पूरा फेथ और कन्विक्शन बहुत ज्यादा होता है। उसने जो जो पढ़ा है शास्त्र में उसको प्रैक्टिकली दिखता है अपने लाइफ में होता हुआ। इसलिए कभी कभार डिवोटीज पूछते हैं ना, इवन दे आस्क आर ब्रह्मचारी समटाइम्स, क्या हुआ स्वामी जी, आप क्यों सब कुछ छोड़ के ऐसे भक्त बन गए। तो कुछ डिवोटीज बहुत अच्छे अच्छे रियलाइजेशन शेयर करते हैं। तो वो रियलाइजेशंस क्या है, मतलब दे हैव कंप्लीट फेथ, ये है मतलब ऐसा काम कर रहा है। So because of that deep realization of practicing Krishna consciousness, they develop unshakable faith. And because of that unshakable faith, their practice is very strict. Then what happens? Because their practice become very strict and they have unshakable faith on the instruction, they understand mood of Chaitanya Mahaprabhu is of compassion. He wants to bring many, many souls. And then what happens? He goes out to attract the conditioned souls. And such Uttam Adhikari, because he has genuine compassion in his heart, he is able to attract the conditioned souls. Like Srila Prabhupada, we see, and of course, many other followers of Srila Prabhupada. When they go, they used to go, so many people used to get attracted towards them. And not only attracts them, but he also transfers his faith and conviction, knowledge which he has about Krishna in others. And they also get transformed. So this very important quality of Uttam Adhikari we have to understand is his ability to transform the Vaishnavas. मतलब कभी कभार मेरे को लग सकता है कि मैं उत्तम अधिकारी हूँ, पूरा अनर्थ हो गया, लेकिन कितने लोगों को बदल रहा हूँ ये तो देखो, है ना। हाउ मेनी पीपल आई एम एबल टू ट्रांसफॉर्म? हार्डली एनी। ट्रांसफॉर्म मतलब शुद्ध भक्त। ट्रांसफॉर्म मतलब ये नहीं कि खाली धोती कुर्ता पहना दिया या शेविंग करवा दिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन रियली गोज बैक टू गॉड। So this is what is important. Now we see that कनिष्ठ अधिकारी तो प्रीचिंग नहीं करता है, मध्यम अधिकारी प्रीचिंग करता है, उत्तम अधिकारी यहाँ पे हम बता रहे हैं उसके हार्ट में भी कंपैशन है। लेकिन ये कंपैशन जो उत्तम अधिकारी का है और मध्यम अधिकारी का जो प्रीचिंग वाला पार्ट है, वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंसेस है। जो उत्तम अधिकारी होता है, ही सीज कृष्ण इन एवरीवन, he sees every living entities में कृष्णा है। मध्यम अधिकारी sees कृष्णा only in devotees. अदर्स ही ऑफ कोर्स परमात्मा के रूप में है, ये नॉलेज है उनको, बट इन प्रीचिंग सेंस हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी ऑफर रिस्पेक्ट टू ऑल, इवन डीमंस, कोई भी आ जाए प्रणाम कर देगा उसको। मध्यम अधिकारी, उसको पता है मेरे को डीमन से दूर रहना भाई, उनके पास नहीं जाना है। उत्तम अधिकारी he will show compassion to everybody. Everybody मतलब प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, सबके लिए उसके हृदय में बहुत ऐसा भावना रहेगा सबके लिए। लाइक वी सी ना,
वो जॉन लेनन के घर पे थे शिला प्रभुपाद जी लंदन में, एंड ही वॉज गोइंग बैक। तो जाने से पहले प्रभुपाद जी, गार्डन था, गार्डन के सारे पेड़ों को ऐसे ऐसे छू के गए, है ना, और फिर चले गए शिला प्रभुपाद। अगले दिन वहां पे एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, वो सारे पेड़ खराब हो गए, मतलब सारे पेड़ नष्ट हो गए। तो वहां पे शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स लिखते हैं कि प्रभुपाद वाज फोरसी एंड देयरफॉर ही गेव दैट मर्सी टू दोस ट्रीज, है ना। वैसे ही हम देखेंगे कि वो जो उत्तम अधिकारी है ना, ही विल लाइक टू शो कंपैशन टू काउज, टू एनिमल्स, टू ऑल लिविंग बींग्स, एवरीबॉडी। बट मध्यम अधिकारी वो बोलेगा, प्रभु जी ना कॉलेज प्रीचिंग करते हैं, इन लोगों को पहले भक्त बनाते हैं, हम बाकी जाके प्रीचिंग करना इतना अभी अभी स्कोप नहीं है हमारा। हम्म, हम अभी फिक्स रहते हैं इतने से यूथ प्रीचिंग से, है ना, या फिर कांग्रीगेशन प्रीचिंग से, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, बस इतना ही करना है। उसके अलावा कुछ नहीं, नहीं अभी क्या प्रसाद वरसाद बांटना, ये सब कनिष्ठ व्यक्ति का काम है, मेरे को आप कहाँ ये सब बोल रहे हैं। लेकिन उत्तम अधिकारी के लिए सारी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी एक्ट को ऐसे ही करता है। लाइक आई टेल यू one real life incidents, and like once Radha Shampoo was coming, and he was teaching us. uh, एक बार उन्हें सेशन लिया बेसिकली ऐसे ब्रह्मचारी का, एंड ही वाज टेलिंग अस कि कैसे अगर आपके पास कोई गृहस्थ डिवोटी आता है, वो बोलता है प्रभु जी मेरे बेटे का अन्नप्राशन कर दीजिए। अन्नप्राशन मतलब माय चाइल्ड इज गोइंग टू ईट फर्स्ट टाइम ग्रेन्स, तो प्लीज डू सम अन्नप्राशन। तो राधे श्याम प्रभु बताने लगे कैसे करते हैं अन्नप्राशन। तो हम सोच रहे हैं प्रभु जी हमको क्यों बता रहे हैं, हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं, अन्नप्राशन की क्या जरूरत है। प्रभु जी बोले क्योंकि आपको भी करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई गृहस्थ डिवोटी आपके पास आएगा, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, आप ऐसा अवॉइड नहीं कर सकते। अन्नप्राशन अन्नप्राशन नहीं, लेक्चर देना है तो बताओ बेटे को। अब बेटे को क्या लेक्चर देगा, उसको थोड़ा समझ आएगा, उसको अन्नप्राशन ही समझ आएगा। तो एक्चुअली क्या है, उत्तम अधिकारी क्या होता है, वो सारी चीजों में उसको कंपैशनेट एक्ट दिखता है। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे गुरुज हैं, उनको बुलाते हैं इतने सारे डिवोटीज, है ना, वीडियो ऑफ करके नहीं बुलाते, वीडियो ऑन करके बुलाते हैं, है ना। तो इतने सारे डिवोटीज बुलाते हैं उनको, एंड दे लेट देम डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स। प्रभु जी हमारे डोनर है, इनको ये दे दीजिए, वो पूरे भावना के साथ देते थे। प्रभु जी ये हमारे, इन्होंने गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, इनको ये गिफ्ट दे दीजिए, गिफ्ट दे देते। एंड दे डू इट विद फुल फेथ एंड कंपैशन टुवर्ड्स दोज लिविंग एंटिटीज। हम, मेरे को कोई ऐसा बुलाएगा तो मैं सोचूंगा अरे प्रभु जी गिफ्ट विफ्ट छोड़ो ना यार, डांसिंग कीर्तन करते हैं, ये क्या गिफ्ट विफ्ट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, है ना। बिकॉज वी आर नॉट एट दैट लेवल। बट उत्तम अधिकारी वो हर एक एक्ट, छोटी से छोटी एक्ट में ना फुल कॉन्शियसनेस के साथ करेगा। वो आरती लेगा, वो दिया देगा, कुछ भी करेगा ना, ही विल बी फुल्ली हैविंग दैट यूनिवर्सल कंपैशन। एंड उत्तम अधिकारी हैज प्योर विजन, means he doesn't see any fault in anybody. But madhyam adhikari, he has to see fault little bit. So just to take you a little off track, हम एक conversation करते हैं राधिका एंड माधव के बीच में। So anybody would like to become राधिका एंड माधव, जिसकी थोड़ी फेमिनिस्ट आवाज है, उसको बनो। आई हर्ड उत्तम अधिकारी सीज कृष्ण एवरीवेयर, इज दैट लिटरल, ऐसे करके कोई पढ़ सकता है। अरे उत्तम अधिकारी बनना है आपको, इक्वल विजन पे आना पड़ेगा, ये भी प्रॉब्लम। उत्तम अधिकारी तो हर किसी को प्रेशर करते हैं, मध्यम अधिकारी नहीं नहीं, माता जी नहीं, माता जी डेंजरस। हालांकि माता जी नहीं, हम डेंजरस है, माता जी में डेंजर नहीं है। कोई कॉल पड़ेगा। तो जी हम पढ़ सकते हैं अभी? हाँ, आप राधिका बनेंगे यस वो जी बन जाएंगे। और माधव कौन बनेगा। ठीक है आकाश टू, चलिए आप माधव बनिए और ये राधिका बनेंगे, ठीक है। चलिए पढ़िए, यस प्रो। I heard उत्तम अधिकारी श्री कृष्णा एवरीवेयर, इज दैट लिटरल? ऐसा लग रहा है कि राधिका का गला खराब हो गया है, थोड़ा आवाज ऐसे निकालना। आई यस हर्ड। तो तो हाँ, I heard उत्तम Yes, अधिकारी sees Krishna everywhere, is that literal? yes, just like Prahlad. For them, the whole world is Krishna's home. Do they judge anyone? Not at all. Even a demon gets respect from them. Their heart is clean, no hatred. They, why don't we see them commonly? Then why don't see Because, the,
Because reaching that stage requires pure love, Premanjan. Krishna reveals himself only to such hearts. एंड मध्यमाज. Their job is to assist the Uttamas and spread Krishna consciousness practically. Amazing. So Uttam Adhikari is not just a title, it's a vision. Exactly. It's a transformed heart. Correct. So all of you can become Uttam Adhikari. Whether you all must become Uttam Adhikari. I am not telling. Chaitanya Mahaprabhu said that all of you, Amara Agya Guru Hoya, all of you should become Guru. And that's what Rupa Goswami says in the first shloka, become Guru. And Guru means become Uttam Adhikari. So all of you devotees, don't just underestimate yourself and keep yourself hidden. You might be Uttam Adhikari already, but at least all of us should strive to become Uttam Adhikari. And Uttam Adhikari, one point which Srila Prabhupada doesn't mention, but he told me to write here is Uttam Adhikari always keeps his camera on. That is very important criteria for Uttam Adhikari. Okay, so please try to raise yourself to Uttama level. Very, very helpful. Okay. So now you may say, प्रभु जी उत्तम छोड़ो, पहले मध्यम बनना है. अभी क्या मध्यम, तो बताओ कैसे बनेंगे. ठीक है. तो मध्यम के लिए this slide is from His Grace Radheshyam Prabhu's lecture. Radheshyam Prabhu says how to progress from Kanishta to Madhyama. ठीक है, उत्तमा दूर है, लेकिन एस्पायर होना चाहिए. लेकिन कैसे हम कनिष्ठ से मध्यम में जाएं? So it is written, one should not remain on the Kanishta level, but progress to the Madhyama. Bhakti Siddhanta Surya Thakur used to say, as a Kanishta Adhikari gradually comes to perceive the mental activities of a devotee and tries seriously to advance to a higher stage, his materialistic conception will go away of their heart, of their own accord. So very important thing for us to become Kanishta to Madhyama is that we should try to understand the mental activities of a Uttam Adhikari. How he is behaving. Like many of you or us, we celebrate Vyas Pujas of our spiritual master. तो हम बताते हैं महाराज ने ऐसे किया, महाराज ने वैसे किया. वो किया खाली व्यास पूजा के लिए नहीं किया, वो हमको अप्लाई करना चाहिए हमारी लाइफ में. अरे उन्होंने ऐसे डील किया सिचुएशन में. So when we will try to understand their mental activities and try to adopt them, that is how we will progress. Then he says, perceive the mental होना चाहिए. Activities, understand the attitude of a devotee while he is performing devotional service. Just try to see how Uttam Adhikari is performing devotional service, how he perform every acts. है ना. आजकल लोग क्या करते हैं, वो एक्सटर्नली कॉपी करते हैं गुरु को, लेकिन इंटरनली मूड को कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटर्नली कॉपी कैसे, वो गुरु ऐसे उत्तरी डालता है तो वो भी ऐसे उत्तरी डालते हैं. वो गुरु ऐसे चलता है तो वो भी ऐसे चलते हैं. गुरु की ये ट्यून है कीर्तन की तो वो भी वही ट्यून गाते हैं. ये सब एक्सटर्नल चीजें अच्छी है, ये भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल चीजें कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. व्हाट इज मेंशन, है ना. हैव अ सीरियस डिजायर टू एडवांस, एंड वी शुड डिजायर टू एडवांस. ऐसे नहीं अपने आप हो जाएगा जी, नथिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली. वी शुड बी हैविंग डिजायर. कृष्णा रेसिप्रोकेट्स एज पर आवर डिजायर. दिस इज, if somebody has this notion, मैं इसमें chanting कर रहा हूँ 4 executive principles, everything will happen automatically. प्रभुपाद ने लिखा है ऐसा ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक कैसे होगा? When we will desire, and when we will have this desire, let me progress to the Madhyama level. So Prabhupada says in his purport also that one should try to take initiation from Uttam Adhikari. And what does that initiation means? Prabhupada writes, which we'll read quickly. Yes. दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्म सम. कोई पढ़ेगा? All the time. At the time of initiation, when a devotee fully surrenders unto the service of the Lord Krishna, accepts him to be as good as himself. Correct. वहां वह कॉमा था, कॉमा है ना. कॉमा में थोड़ा पॉज करते. At the time of initiation, pause. When a devotee fully surrenders into the service of the Lord, pause. Krishna accepts him to be as good as himself, है ना. तो first thing, we should accept initiation. And then when we will have initiation and surrender, then what will happen? Divyam jnanam yato dadyat kuryat papasya sankshayam tasma diksheti sa prokta deshike sattva ko vide. At the time of initiation, what happens? Please read, Prabhu. By Diksha, one gradually becomes disinterested in material environment and gradually becomes interested in spiritual.
करेक्ट, दिस शुड हैपन एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात, जो गुरु होता है दीक्षा के समय क्या करता है, दिव्य ज्ञान देता है। कुर्यात पाप से संशयम, आपके पापों को नाश कर देता है। तस्मात् दीक्षेति स प्रोक्ता, दिस इज कॉल्ड दीक्षा। देशिकेश तत्व कोविदा, एंड ही डेवलप्स आर इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो दिस थिंग हैपेंस। सो आई वाज जस्ट हियरिंग दैट गुरु क्या करता है, दीक्षा के समय सारे पाप हमारे नष्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद हम अगर पाप कर रहे हैं तो फिर डेंजरस है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं कि पाप करते रहेंगे और गुरु नष्ट करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे और गुरु नष्ट करते, ऐसा नहीं है। वो नष्ट करने की मशीन नहीं है गुरु। ठीक है, एक बार कर दिया उन्होंने दीक्षा के समय, लेकिन उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम और पाप नहीं करें, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इनिशिएशन ले रहे हैं, देन वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस दैट नाउ आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल नॉट गिव अवे विद दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल फुल्ली सरेंडर to my guru. इसलिए प्रभुपाद used to say many places that who can take initiation, somebody else can read who has not read till now. What is initiation? Diksha. Prerequisite. When one becomes so disinterested in material enjoyment, he becomes fit for initiation by the spiritual master. When a person is serious about accepting Diksha, he must be prepared to practice austerity, celibacy, and control of the mind and body. If one is so prepared and is desirous of receiving spiritual enlightenment, Divya Jnanam, he is fit for being initiated. Diksha is a process and not a one-time event. His Holiness Giriraj Maharaj, Diksha is complete when one comes to Bhav. At that point, Krishna accepts the devotee on the same level as himself, and the devotee becomes eligible to serve Krishna with his transcendental senses. So, formal initiation is the beginning of surrender, and at platform of Bhav, the surrender is complete when all the anarthas are removed, and then Krishna accepts him. First, 3 of 64 items are most important. Srimad Bhagavatam 7:7, 29 to 31. अदौ गुरु पादाश्रय कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा. Correct. So this is what it means. 64 limbs of bhakti mein first 3 items are very important, and prerequisite is when one becomes disinterested in material enjoyment, that is the time he becomes fit for getting initiated. So if we are not disinterested in material enjoyment, actually what happens, we become disinterested, then after initiation we again become interested. That is an irony, that is a problem. But if you want to really remain serious in bhakti, then we should remain disinterested in material enjoyment and try to practice celibacy, control, austerity, so that we can actually accept Gyan from Guru and progress ahead. Giraj Maharaj, he says that Diksha is complete when one comes to Bhava. Otherwise, before that, Diksha is a process, not one-time event. So, gradually we are increasing towards it. It's not like, Aaj Diksha khatam. Prabhupada bole Diksha means initiation. Initiation means now you have begun your journey. है ना? So, sometimes devotees, initiation हो गया, चलो प्रभु जी, काम खत्म हो गया, पहली दीक्षा, अब क्या दूसरी दीक्षा के लिए क्या करना, भक्ति शास्त्री लाओ लाओ यार, भक्ति शास्त्री लेके आओ, एनओआई पढ़ना है ना सुबह सुबह 7 से 8, ठीक है, बोल दो, करो, क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इनिशिएशन मतलब एक्चुअली वी आर प्रोग्रेसिंग अहेड, वी आर गोइंग अहेड स्लोली स्लोली। बिगनिंग है ये इनिशिएशन, तो इसलिए इनिशिएशन एंड नहीं है, बिगनिंग है। गेट्स कंप्लीट एट द लेवल ऑफ भावा। भावा मतलब that now you have successfully completed your life and now you are ready to understand your spiritual identity in the spiritual world, and that is how we progress. So therefore we should take initiation of such a guru, and not just take but serve him with full faith. We'll stop by this last slide where Prabhupada is urging everybody to take initiation, and that initiation process is also given in 7th canto of Srimad Bhagavatam. गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धारपनेन च संगेन साधु भक्तानाम् ईश्वरा अधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनेर्गुणकर्मणां तत्पादाम्भुरुं ध्यानात् तल्लिंगे सार्हनाधिपिका. Yes, somebody can read, Prabhuji, translation. One must accept the bona fide spiritual master and render service unto him
with great devotion and faith. Whatever one has in one's possession should be offered to the spiritual master, and in the association of saintly person and devotee, one should worship the Lord. Hear the glories of the Lord with faith. Glorify the transcendental qualities and activities of the Lord. Always meditate on the Lord's lotus feet and worship the deity of the Lord strictly according to the injunction of the Shastras and Guru. Correct. So this is the instruction which Srimad Bhagavatam gives to all of us. Now, after telling about three levels of devotees, in next shloka, shloka number 6, Rup Goswami is going to elevate us more. He has told about Uttam Gari, how he doesn't criticize, and how we can learn not to criticize the devotees and find fault in them. That is what Rup Goswami is going to tell us in 6th shloka. Because he's gradually elevating us, dear devotees. Try to understand this thing. He's elevating us and elevating our consciousness slowly, slowly. So he has told us to associate with devotees, but discriminate in the devotees. But while discriminating, one should not be criticizing. And why he should not criticize, how he should protect himself from criticizing devotees, which is very dangerous. Because sadhu sangha can help us to progress, but that same criticism, blasphemy of sadhus, can help us to degrade ourselves. And that will be told in the next shloka, shloka number 6. So we'll stop here. Any questions? नहीं तो गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हैं आप लोग. यस, फास्ट फास्ट प्रभु, आकाश प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये लास्ट से था. जैसे वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इफ वन इज बिकम डिसइंटरेस्टेड इन मटेरियल, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन और मटेरियल एंजॉयमेंट, तो वो फिट होता है दीक्षा लेने को. और आपने बताया कि हमारे साथ बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, हम तो एक बार हो जाते हैं, उसके बाद इनिशिएशन के बाद फिर हमारा अट्रैक्शन आ जाता है. तो प्रभु जी, मुझे लगता है वो तो ठीक है, एक लेवल के लिए वो अच्छे है, लेकिन मेरे जैसे लोगों का क्या होगा जिनका सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति वो अट्रैक्शन बना ही रहता है, तो क्या वो कभी एलिजिबल हो भी पाएंगे? जिनका बना रहता है उनको क्या करना चाहिए? उनको समय लेना चाहिए, डिवोटिस को सर्व करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए. तब वो रियलिटी में देख पाएंगे कि मेरे को लग रहा है सेंस ग्रेटिफिकेशन मेरे को हैप्पीनेस दे रहा है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं दे रही है सेंस ग्रेटिफिकेशन मेरे को. दे विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड दिस. So such devotees should not, out of fashion, take initiation. They should take their time and try to read more shastras, understand that how it is not good. well, एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए. या तो हमारा स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति बहुत अट्रैक्शन हो जाना चाहिए, दैट आई एम रेडी टू सरेंडर हो जाना चाहिए उनको फुली. ठीक है, मेटल डिसइंटरेस्ट नहीं आए, या तो मेटल डिसइंटरेस्ट आना चाहिए. दोनों में से एक कंडीशन तो होनी चाहिए. थैंक यू. प्रभु जी, दूसरा ये जो हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि इनिशिएशन कंप्लीट एट्स भाव लेवल, इसका मतलब समझ में नहीं आया, कैसे ये कि कंप्लीट ग्रेजुअल होना? प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ये चलता रहेगा. धीरे 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 गुरु आपको हेल्प करेंगे अनर्थ निवृत्ति के लिए, फिर निष्ठा के स्टेज पे हेल्प करेंगे, फिर रुचि में हेल्प करेंगे, फिर आसक्ति में हेल्प करेंगे. भाई खाली इनिशिएशन ये नहीं ना कि माले दे दिया पकड़ा दे खत्म. इनिशिएशन का मतलब क्या है? उसको भगवत नाम लेके जाना ना, उसको इटर्नल आइडेंटिटी रिमाइंड करानी है जो भूल गया है. तो वो सब कुछ इटर्नल आइडेंटिटी पता चल जाती है भाव के लेवल पे. क्वेश्चन ये आ रहा था प्रभु जी, बहुत सारे केसेस हम देखते हैं भावा लेवल से ही फॉल डाउन हो जाता है. जैसे हमने भरत महाराज का देखा था, वो सब तो जब अगर इटर्नल आइडेंटिटी रिवील हो गई, ये सब हो गया, तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है? ठीक है, आपने उसको देखा लेकिन पढ़ा शायद से नहीं. अगर आप प्रभुपाद जी के पर्पट पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी उसमें क्लियरली लिखते हैं कि भरत महाराज वॉज एन एक्सेप्शन फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. एंड हार्डली देर आर केसेस ऑफ फॉल डाउन एट द लेवल ऑफ भावा. खाली भरत महाराज मिले, एंड दैट ऑल्सो टू टीच ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज नॉट अ फॉल डाउन, दैट वॉज अ क्विक प्रोसेस टू ब्रिंग हिम क्लोजर. प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे भरत महाराज को अपनी नेक्स्ट लाइफ में, डियर की लाइफ में प्रीवियस लाइफ याद थी, जट भरत की लाइफ में भी उनको अपनी प्रीवियस लाइफ रहती. यानी कि ये सिम्टम है डायरेक्टली कि भगवान उनके लाइफ में पर्सनल इंटरफेयर कर रहे थे. जैसे अर्जुन के केस में भगवान ने बेविल्डर किया, बट अर्जुन बेविल्डर नहीं थे, हम लोग बेविल्डर थे. तो वैसे ही देर इज नो चांसेस लाइक दिस विच हैपन्स, बट लॉर्ड सेज टू बी केयरफुल. ठीक है, तो आप हवा पे पहुंचो, नहीं होगा फॉल डाउन, मैं गारंटी लेता हूँ. थैंक यू प्रभु जी. किसके लिए? गारंटी के लिए कि भावा पे पहुंचाने के लिए?
वो अच्छा, ठीक है। वन क्वेश्चन वी हैव, प्रभु जी, आई आस्क्ड टू इनिशिएटेड devotees that do you have desire for sense gratification, they told yes. They, what does it mean they are not doing any offense? देखिए, क्या कहते हैं, अभी आपने किस डिवोटी से पूछा, उसने किस भाव में बोला है मेरे को पता नहीं। हम फिलोसफी पे बात कर रहे हैं, तो फिलोसफी तो यही है कि डिसइंटरेस्ट होना चाहिए। अभी उसको नहीं हुआ तो उसने आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल दिया। जैसे वो भागवतम क्लास देने बैठते हैं ना, तो एक बार एक डिवोटी बता रहा था, वेस्ट में गए, उसने क्लास के स्टार्टिंग में बोल दिया, सो मेरी कोई योग्यता नहीं है क्लास देने की, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। तो एक डिवोटी ने ऑडियंस में, अरे योग्यता नहीं है तो क्यों बैठे हो, उतरो ना नीचे। योग्यता नहीं फिर भी बैठ रहे हो ऊपर। तो अभी वो क्यों, वो डिवोटी ह्यूमिलिटी के साथ बोल रहा है, किसके साथ बोल रहा है, दैट इज सब्जेक्टिव, बट द प्रिंसिपल सेज लाइक दिस। ठीक है। एंड देर आर टू थिंग्स, डिजायर्स एंड कंडीशनिंग्स। ठीक है। तो वन में हैव कंडीशनिंग आफ्टर इनिशिएशन, बट डिजायर इज डिफरेंट थिंग, है ना। तो डिजायर्स तो जनरली नहीं रहते डिवोटीज का। अगर किसी का डिजायर है तो वही है, देन ही इज अगेन कमिंग बैक टू दैट सेम ओल्ड थिंग्स। बट कंडीशनिंग्स हो सकता है जिसको धीरे धीरे हम ओवरकम कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, हाँ, एक एक ऑनलाइन है, उसके बाद आपका क्वेश्चन। तो जी, कैन यू गिव सम टिप्स ऑन अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म एंड फॉल्ट फाइंड। अरे नेक्स्ट, कल का श्लोक वही है, उसमें पूरा टिप्स देने वाले, मैं नहीं देना, रूप गोस्वामी देने वाले हैं कि कैसे अवॉइड करना क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो कल तक हमारे साथ बने रहिए। यस प्रभु। प्रभु जी, इसमें जैसे आपने उत्तम अधिकारी का स्टार्टिंग में बताया था कि ही इज लीस्ट अबाउट क्रिटिसाइजिंग अदर्स एंड ही बिकम्स द ही इज टू एक्सेप्टेड एज स्पिरिचुअल मास्टर। तो उसमें एक मतलब ऐसे भी सुनते हैं कि द मेन बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज टू मींस करेक्ट द डिसाइपल्स। तो ये करेक्टिंग और क्रिटिसाइजिंग ये अलग अलग चीज है मतलब, इसमें थोड़ा डाउट आ रहा था कि तो वो जो स्पिरिचुअल मास्टर रहता है वो मतलब ज्यादा उसका मेन बिजनेस रहता है कि डिसाइपल्स के फॉल्ट्स देखना और करेक्ट करना ताकि वो ग्रो कर पाए। तो इसमें थोड़ा अंतर। ओके, एक्चुअली क्या है, देखिए, क्रिटिसिज्म, ब्लास्फेमी जो हम बातें करें ना, दे आर लाइक पब्लिक इवेंट्स। ठीक है। which somebody if is criticizing openly कि अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, that in that case is not good for spiritual master. But here spiritual master trying to correct his disciples, that is out of his compassion only, and he doesn't do it in a public way. Public way in the sense ऐसा नहीं है कि he is criticizing some other devotee. Like for example, अभी क्या है, हो सकता है कि जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे, हम सुनते हैं, है ना, उन्होंने देखा कि उनके डिसाइपल्स क्या, दे आर फाइटिंग फॉर मटेरियल थिंग्स। ही डिड नॉट टुक आउट नेम एंड स्टार्टेड टेलिंग कि अरे ये लोग गलत कर रहे हैं। उन्होंने एक जनरल प्रिंसिपल क्लास में बताया, सो दैट डिवोटीज कैन बिकम अवेयर। सो हियर द क्रिटिसिज्म इज, वी कॉल इट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद द आई ऑफ कंपैशन। जस्ट लाइक हम लोग को नाइफ का एग्जाम्पल है ना, डॉक्टर के पास है, चोर के पास है, तो वैसे ये क्रिटिसिज्म भी यूज करना चाहिए, इवन चस्टाइजमेंट भी यूज करना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर को, सिर्फ डिसाइपल को ग्रो करने के लिए। लेकिन हम जो ये क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, ये बिना किसी डिसाइपल्स के क्रिटिसिज्म के, ही इज इन जनरल क्रिटिसाइजिंग, जो उसके स्कोप में भी नहीं है। कभी कभार आप देखते हैं कोई डिवोटी और दूसरे डिवोटी को क्रिटिसाइज कर रहा है, ना तो वो उनका शिष्य है, ना तो उनसे गाइडेंस ले रहा है, फिर क्यों क्रिटिसाइज करना है उसको। दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी इज टॉक टू हिम। ठीक है। एनीथिंग एल्स प्रभु जी? Okay, so we'll stop हरे here. All the हरे very कृष्ण। best for your book distribution, Gita Marathon, and please help Srila Prabhupada to distribute more and more books. And today's Monday might be working day. If you cannot distribute books, at least do something. One book you can distribute. You know, Krishna may be happy. And do something at least. At least put on your status that today is Gita Jayanti. Anybody interested in Bhagavad Gita, take from me. कुछ तो करो, है ना, प्रभुपाद जी विल बी वेरी हैप्पी। सो स्टॉप हियर, थैंक यू। आपका क्वेश्चन है प्रभु? यस प्रभु जी, एक मिनट। जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। हाँ प्रभु जी, उसमें जो दीक्षा के लिए प्री रिक्विजिट था कि डिसइंटरेस्टेड फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, तो प्रभु जी वो माइंड के लेवल पे है या फिर वो बॉडी के लेवल पर है प्रभु जी? माइंड के लेवल पे। मीन्स वो माइंड में वो इमेजिन कर सकता है पर वो एक्ट नहीं करेगा, इस ये है क्या? नहीं, माइंड में वो कन्विंस है कि मेटेरियल एंजॉयमेंट मेरे को हैप्पीनेस नहीं देने वाली है, ओह, लेकिन फिर भी उसके सामने शाही पनीर रहेगा तो खा लेगा।
आज एकादशी सॉरी, उसके सामने गाजर का हलवा आएगा तो खा लेगा, क्योंकि कंडीशनिंग है उसकी। लेकिन माइंड में एटलीस्ट ही नोज थियोरेटिकली एंड ही इज कन्विंस्ड दैट इट्स नॉट गुड। मैंने कितनी बार गाजर का हलवा खाया, बार बार एक ही जैसा लगता है। ठीक है। वैसे गाजर का हलवा अगर प्रसाद है तो खा सकते हैं, यहाँ मेटल एंजॉयमेंट की बात हो रही है ना। तो आप खिला सकते हैं डिवोटी को आज बना के, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। नहीं ठीक है, आंसर गाजर का हलवा खिला रहे ना फिर आप। यस प्रभु जी। अरे बोल, कहाँ हो आप, मेरे को बताओ, मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय।